और मुखिया जी घूस खाय छै कारण छै कि और टूटी में पानी न दै छै सर और इंदिरा आवास में 30,000 टका सर खाय छै कथि से घर बनेबै। विकास तो है पर मुखिया को घूस देना पड़ता है। Let that sink in. We will come to that later. We reached Araria in Bihar, known as one of the most backward districts in India. This Simanchal district goes to polling on May 7. The sitting member of parliament is from BJP, but here, more than BJP party flags that would otherwise give you a sense of dominance or even a sense of election, you will find these religious saffron flags all across, setting the undertone if religion as an all-encompassing feeling would dominate the election here. Ask any political pundit about Bihar and the answer would be caste politics and religion politics have often preceded over roti kapra makan and has helped shape the future of politics in this part of the country. In January this year, months ahead of Lok Sabha election, Nitish Kumar, the sitting chief minister, had dumped RJD Congress and had gone back to the folds of BJP, had gone back to the folds of NDA. How much will Nitish Kumar's interpretation of Vikas help BJP trying to champion the vision of Vikas of Prime Minister Modi? As we visit Araria, we try and decode if religion is overlapping with politics and who is trying to take advantage of it. In this part of the Simanchal, 43% Muslims and 57% of Hindus constitute the demography. Interestingly, out of that 57% of Hindus, there's roughly about 14% Yadav. First, we reach the house of sitting BJP MP, Pradeep Kumar Singh. Early in the day, the entire house is filled with his supporters. We will try and go inside and find out whether we have a luck for his interview or not. As we walked in and went inside his office, a candid Pradeep Kumar Singh could be seen in a lighter mood, interacting with his workers. Our cameras kept rolling till a phone call came and his people asked us to stop filming. But by then, he had already said this. Vote yani Prabhu Ram ka kaam. It isn't controversial, only reflective of the times we are in. After the Ram Mandir inauguration in January this year, the celebration over homecoming of the Lord as a meticulously engineered narrative has now catapulted the political discourse to BJP crediting Prime Minister Modi of fulfilling the long-standing desire of the people. Pradeep Kumar Singh, however, mindful of the demography in his constituency, tried trading with caution. देश हित में, राष्ट्र हित में जो 10 वर्षों में विकास का काम किया है, वह सर चढ़ के बोल रहा है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम करोड़ों हिंदू का वह आस्था का प्रतीक था और वह आज बनके तैयार हो गया। मैं किसी का विरोधी नहीं है, हिंदू का मतलब मुसलमान विरोधी नहीं हूँ मैं। हिंदू एक संस्कार है, हिंदू जीवन पद्धति है, हिंदू हमारी संस्कृति है और हिंदू वह धर्म है कि हम पीपल का गाछ को भी भगवान मानते हैं, बरगद का गाछ को पूजा करते हैं, सांप को भी नाग देवता कहते हैं। तो जो हिंदू धर्म, जो हमारी संस्कृति हर जीव जंतु को भगवान मानता हो, क्या मैं मुसलमान विरोधी हो सकता हूँ? नहीं हो सकता हूँ। आप ये जो चीज़ कहे सर, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बिकॉज भारतवर्ष, इंडिया सेक्युलर देश है और जब नेता ऐसे बात बोलते हैं तो सब सराहते हैं। लेकिन सर, आप जिस क्षेत्र के एमपी है, इस क्षेत्र में हिंदू भी है, मुसलमान भी है और दोनों का वेट है अपनी अपनी जगह।
प्रधानमंत्री का जो बयान आया रिसेंटली मंगलसूत्र और मुस्लिम लेके, आपको लगता है कि आपके चुनाव में वो कुछ आंकड़ा डाल सकता है? ये प्रधानमंत्री ने जो बयान दिए वो सही न दिया। उन्होंने कहा मुसलमान घुसपैठिया? नहीं, ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि देश में पहला हक मुसलमानों का है। यही तो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। अगर हम आज चावल आता है, नरेंद्र मोदी जी देते हैं 5 किलो अनाज फ्री, तो हिंदू मुसलमान सबको न देते हैं। यही तो मुसलमान कह के वोट लिया कांग्रेस आज तक। मुसलमानों का तो कुछ चिंता किया नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ देश को ऊपर ले जाना है। दल और पार्टी से ऊपर राष्ट्र है। ऐसा नहीं कि कोई दल बड़ा है, राष्ट्र बड़ा है। तो आज राष्ट्र जब मजबूत होगा तो राष्ट्र का हिंदू मुसलमान, छोटा बड़ा, अगड़ी पिछड़ी, दलित महादलित सब मजबूत होगा। He clearly has his own interpretation of what the Prime Minister had said on 21st of April in Rajasthan. और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। But for Pradeep Kumar Singh, his own interpretation could be convenience. We wanted to do a reality check and thus tracked Pradeep Kumar Singh to his public meeting at Raniganj in Araria to sense the mood of the people, if people were convincingly celebrating Vikas or there was something else. कुछ लोगों को विकास दिखाई नहीं पड़ता, पता नहीं कौन सा चश्मा पहने हुए है या आंख का रोशनी गड़बड़ हो गया, उनको विकास दिखता ही नहीं। और 4 लाख गरीबों का शौचालय बना है। आज तो पानी के सामने हम लोग मजदूरी कर रहे हैं। क्या चाहते नेताओं से? इलेक्शन का टाइम है, दिल खोल के बोलिए। नहीं, देखिए, चाहने का क्या है, जो जिसमें सबका भलाई हो वो काम कर दे बस। जो मान लीजिए अभी रास्ते का है, सब जगह का रोड बन गया, आदमी सब जा रहा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह सब काम करे, अब सबको रोजगार मिल जाए, उसके तरफ एक बार ध्यान दिया जाए। एक बार विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए हम लोगों का, बिहार में फिर न होगा। कंपनी सब आएंगे, यहाँ प्लांट बैठाएंगे, बेरोजगारी हटेंगे, पंजाब दिल्ली जनगणना बंद होगा, तब न होगा। मान लीजिए मोदी जी से हम लोग नाराज नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए बिहार को। लेकिन वो बीच में आके बोले थे ना, एक फाइनेंशियल पैकेज देंगे 1,25 करोड़ का, 25,000 करोड़ का। अभी तो दिए नहीं। मोदी जी का अलग तरीका का सोचने का है, वो समय आने के बाद ऑटोमेटिक कर देते हैं और करके दिखाए भी। जैसे समय आएगा तो ऑटोमेटिक, जैसे राम मंदिर बनने का था हो गया ना, सब होगा धीरे धीरे। जो काम करेगा वो जितवे करेगा। तो काम हो रहा है, काम हो रहा है। हो रहा है काम की। अच्छा, हो रहा है काम की। आम के पेड़ में मोजर कितना है पत्ता देखे हैं ना, मगर उसको छिपा सकता है जब मोजर निकलता है तो। मोजर निकल गया है, छिपाने वाला कोई नहीं है। क्या निकल गया है? निकल गया, जो काम कर रहा है उसके लिए जीतेगा। अच्छा,
कौन जीतेगा? जीतेगा मोदी निकलेगा, 400 से पार ऊपर 400 निकलेगा, पार हो जाएगा। हो जाएगा निश्चित, 400 से पार ऊपर जाएगा, कम नहीं जाएगा। कितना सीट है इंडिया में, कितना सीट है टोटल? वह सीट को तो उतना भाई नहीं हमको पता है, मगर 400 के ऊपर जाएगा। एक 8 कट जाए तो कट जाए, ऐसे ही बिचाले में, नहीं तो सब सीट मोदी का जाएगा। विकास हुआ है? विकास हो रहा है, देख रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है। आएगा तो मोदी ही। आएगा तो मोदी ही। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। आएगा तो मोदी ही क्यों? काम अच्छा कर रहा है इसीलिए। क्या काम किया अच्छा? क्या नहीं किया है आप बताइए उसके बारे में, जो अच्छा नहीं किया। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप वोटर है। मैं मेरे नज़र में तो बहुत अच्छा किया है। जैसे मतलब जो होता है गरीबों के लिए, पहले मतलब बिजली बराबर नहीं था, अब बराबर बिजली मिल रहा है। शौचालय मतलब बहुत घर में नहीं बना हुआ था, अब घर घर में बना हुआ है। ये सब बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मेरा भी घर बना है। अच्छा, आपको लगता है कि महंगाई मुद्दा होना चाहिए? नहीं, कुछ महंगा नहीं है, सब कुछ ठीक है, जैसा होना चाहिए वैसा है। आप लोग गैस में खाना बनाते हैं क्या? गैस में? तो वो आपको महंगा नहीं लगता? नहीं लगता है, 1500 भी हो जाए फिर भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और आपको लगता है कि राम मंदिर का एक प्रभाव होगा? होगा, जरूर होगा। क्यों मतलब जो इतना दिन से जो काम अटका हुआ था, विपक्ष वाले जो लेकर के चल रहे थे, वो मतलब काम करके दिखा दिया। जो बोला मोदी जी ने वो कर दिया। जो मतलब बोला इसका कर दिया। धारा 370 जो बोलता था, जो असंभव है, हो ही नहीं सकता, वो भी करके दिखा दिया। वो तो ये भी कहे थे कि 15 लाख देंगे। छोड़िए ना, नहीं चाहिए 15 लाख। 15 लाख नहीं चाहिए। नहीं चाहिए 15 लाख? नहीं चाहिए, कमाते हैं खाते हैं बस, खुश है। अच्छा। He definitely doesn't mind inflation or unemployment. The crowd didn't mind the heat either. While their enthusiasm to participate in the electoral process and be the crowd in an election rally was evident, not all were excited about what the leaders were saying. Some were even nonchalant. They all have their stakes in whatever vikas that has happened in Araria, yet they all reflect a deep-seated neglect. अरारिया का विकास हुआ? वही तो सामने में दिख रहे हैं कि विकास कितना करते हैं प्रदीप सिंह, तो सब जानते हैं। आज के बाद तो फिर जिंदगी में लगभग लगता है कि फिर 5 साल के बाद नजर आएंगे प्रदीप सिंह। हमारा उम्र तो इतना हो गया, 35 के 38 साल हो गया लगभग, एक बार शायद देखे हैं लगभग। 5 साल के बाद आता है सर? आता कहाँ गया, तो फिर गया मोदी के चिपक गया मोदी। फिर कहाँ गया? मोदी का पड़ता है। इंडिया बचाइए, दिमाग चलाइए, बस यही कहना है। सबसे मेन है रोड चौड़ीकरण हो जाएगा, जो आने जाने में दिक्कत होती है। लोग जाने पर नहीं पाता है। इतना भीड़ में कैसे जाएगा ये गाड़ी? एक सिंगल गाड़ी। पतला रोड है बहुत। ये बहुत पतला रोड है, देखो गाड़ी ऐसे चलता है दिनों रात। अच्छा, तो कभी एमपी को पहले बताया नहीं? वो तो बोलता है कि बनेगा बनेगा, कब बनेगा? विकास भी कुछ नहीं है विकास। तो आप लोग तो आए हैं उन्हीं के सभा में? उन्हीं की सभा में आए हैं, तो प्रदीप सिंह है ना इसमें। 3 बार तो जीत गया है, कुछ नहीं किया है। तो अब की बार तो जीत के चले गया, अब फिर उलट के जाता है। जनता का पूछो तो कि प्रदीप सिंह आता है कि दोबारा नहीं आता है? नहीं आता है। 5 वर्ष में फिर भी अभी फिर उसका इलेक्शन हुआ है तो अभी आया। तो आप लोग तो उन्हीं के सभा में आए हैं। आज तो लोग तो बोलता है कि मोदी मोदी मोदी, तो मोदी 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 उसको वोट दो। तो कोई बोलता है कि वो सरकार बना वो बढ़िया है, कोई प्रदीप सिंह के वोट देता है, वो देता था उसका मोदी को देते हैं। हाँ, मोदी को वोट देता है। तो मोदी जी अच्छे हैं? वो तो अभी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी भगवान राम को लाए, मोदी जी राम को लाए। भगवान से पेट भरता है क्या? भगवान भगवान क्या होता है? चाहे हिंदी हो मुसलमान हो, सब कहता है। कोई मुसलमान है तो अल्लाह कहता है, हिंदू है तो भगवान भगवान, तो दिल में भगवान है। अब मंदिरें बना दीजिए, क्या मंदिर खाने के लिए देता है भगवान? क्या राम मंदिर और फ्री में किसान का बेरोजगार जो दे रहा है, गैस सिलेंडर, शिक्षा की कई बात करते हैं मोदी जी, कभी किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। मोदी से बढ़िया कोनो सरकार नहीं है, अच्छा धरती पर नहीं है, क्या पूरा वर्ल्ड में नहीं है। क्या अच्छा लगता है?
क्या नहीं है, देश सुरक्षा है, बस हो गया। और क्या चाहिए, हम लोग सेफ से है अंदर में, बस हो गया। पहले सेफ नहीं थे? नहीं थे, कहीं कम फुरता था। मोदी जी जो किया है न को कर सकेगा, नहीं किया था अभी तक, बस यही समझ लीजिए। राम 500 साल का मुद्दा था, उसको पास किया वो 10 साल के अंदर। There is a added bonanza out here. All of a sudden, the crowd has shifted from the from the podium side, and it has now come towards. All want to see the chopper to land. So it is very exciting for them. It is exciting for them that they get to see a chopper and people are trying to take a picture, a selfie. Of course, the sand, the dust. But then all of them super excited to see the chopper land out here. जितिन राम मांझी जो हम पार्टी से और पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो आए हैं और प्रदीप सिंह के साथ वो चुनाव में हिस्सा लेंगे। आपका नाम बताइए सर। दिलीप कुमार राय। दिलीप जी, ये क्षेत्र का विकास कैसे देखते हैं आप? ये अरारिया में विकास तो नया कुछ नहीं देख रहे हैं। विकास नहीं दिख रहा? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? हम लोग का लाइन है, लाइन में वोल्टेज नहीं है, ऐसा देखते हैं ना क्या विकास है। हाँ। आपके उल्टा तरफ में प्रदीप कुमार सिंह कुछ नहीं, सुनने आए हैं, उनको सुनने आए हैं, आज तक उनका चेहरा नहीं देखे हैं। लाइन है, बिजली वोल्टेज नहीं है। एक एक करे बात करेंगे। हाँ, मोदी जी तो कह रहे हैं कि सबका विकास हो रहा है। सबका विकास कैसे हो रहा है? देश का विकास हो रहा है। देश का विकास नहीं हो रहा है, कंपनी का अडानी का विकास हो रहा है, दूसरे का विकास नहीं हो रहा है। अडानी का विकास हो रहा है? हाँ। अब प्राइमरी स्कूल था, हमारे मास्टर थे, हेडमास्टर अबदलाल शाह, हमको सिखाते थे, प्रार्थना सिखाते, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। प्रधानमंत्री है, अपने देश में जितने भी इंसान है सबको खुश रखना उसका कर्तव्य है। हम अगर घर के गार्जियन है, 5 बच्चा, हमको 5 को खुश नहीं रख सके तो हमको गार्जियन कहलाने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। इंसान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चले और मंदिर मस्जिद नहीं करे। बीजेपी का कह रहे कि मंदिर हो गया, राम मंदिर हो गया, तो उससे विकास हुआ क्या? राम के नाम पर चलते हैं, राम सत्य बोला करते थे, सत्यवादी बनिए। राम जब अपने पत्नी को वनवास में दे दिया था तो राम भगवान अपने घर में चारपाई पर नीचे में सोता था, ये नहीं कि राजगद्दी पर सोता था। वो अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अब हेलीकॉप्टर से उड़ता है। राम भक्त बनिए, राम का अनुसरण कीजिए, सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। यहाँ बिजली का सबसे बड़ा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप 1 घंटा रहिएगा तो भाग जाइएगा यहाँ से, यही चीज़ का दिक्कत है। आपके गले में मैं देख रहा हूँ हनुमान जी का एक लॉकेट है। हाँ। सबका कहना है कि मोदी जी भगवान राम। मोदी जी ठीक है, प्रदीप सिंह नहीं ठीक है, सो बात बोल रहे हैं। हाँ। प्रदीप सिंह अच्छा नेता है। ये वोट तो मोदी जी का पार्लियामेंट का है। हाँ। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टिकट में ये है। हाँ, क्या कीजिएगा, लाचारी इसको दे रहा है लाचारी इसको दे रहा है लोग, इसको देना नहीं चाहिए वाजिब में, कैंडिडेट सही नहीं। सर लाइन दिया है, हम लोग लाइन में वोल्टेज नहीं रहता है, ये सिंगल रोड है, जाने आने में परेशानी है। पंखा जो चलता है ना, रात में लगता है रोता है, हम लाते हैं रात में रोता है। लाइन में वोल्टेज है ना, आधा किलो का। पंचायत में 1 ट्रांसफार्मर है, ये पूरा पंचायत में एक मार्केट में 1 ट्रांसफार्मर। हम लोग के लाइन है, वोल्टेज नहीं है, लाइन रहेगा वोल्टेज ही नहीं रहेगा। देखिए कहाँ लाइन है, दिखाइए कहाँ लाइन, देखिए करंट नहीं है अभी। आइए ना, फैन बंद है इस गर्मी में। तब और दिन में कितना घंटा करंट रहता है, कितना घंटा नहीं रहता? लाइन का कोई गारंटी नहीं है और वोल्टेज भी नहीं रहता है लाइन में। 24 घंटा में 3 घंटा बिजली रहता है अररिया में। अररिया में बरगमा प्रखंड में 3 घंटा बिजली रहता है। 3 घंटा बिजली रहता है। Many at the rally were certainly not buying BJP's Vikas card, but for them there was the Modi card. While there was a seething anger against Pradeep Kumar Singh, but not necessarily that transcends to Prime Minister Modi. Why so? The answer is Ram Mandir vis-a-vis Desh ka Samman.
The meeting was over in 3 hours, and as we were about to leave, we found these women waving at the chopper. They all love Prime Minister Modi. They are sold to the idea of Vikas. But surprisingly, they are the same people who, without any grilling, alleged their own Mukhia from the same BJP party takes bribe, that they have been denied a house under Pradhan Mantri Awas Yojana. कारण जे कि और टूटी में पानी न दे सर और इंदिरा आवास में 30,000 टका सर का कथी से घर बनेबे और जाने रहल छै और खाता में कागज दे दे क्या बोला 30,000 टका व्हाट्सएप ले छै मुखिया जी से व्हाट्सएप से ले छै मुखिया ले कुल बजट में करी अरे दक्षिणी में छियै अखनी गली गली में आवास योजना के नाम अच्छा मुखिया के बात नहीं पूछे छै मोदी जी बढ़िया काम करे छै मोदी जी को वोट देबे नहीं यहां से बस The leader has just come to do a damage control. आप एकदम नेता की तरह आके सिचुएशन को डैमेज कंट्रोल कर दिए। देखिए ये लोग आपका A local BJP leader intervened immediately. He was polite and tried being reasonable. अगर पैसा ले रहा है, घूस ले रहा है, अगर घर ना दे रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसका है? जिम्मेदारी किसका? ये खुद इन लोगों का दिक्कत है कि यदि मोदी जी सुन लीजिए, मोदी जी आपको कौन पैसा दे रहा है ना, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो खुद मूर्ख बन रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी समस्या, बिहार की सबसे बड़ी समस्या जो है, जितने महिला खड़ा है यह सब कर्जदार है। घर में आज जो है कोई 4 गो किस्ता, कोई 3 गो किस्ता, कोई ऐसे करके मतलब यहाँ का स्थिति बहुत से बदतर है। ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत से बदतर है। लोग गरीबी में से जूझ रहे हैं, कर्ज लेके अपना जो है मतलब जीने का अति कर रहे हैं। लेकिन सब नेता तो आके बोल के गए, मुझे मालूम है आप बीजेपी करते हैं और समझ रहे हैं आपकी परिस्थिति, लेकिन अगर वो खुद से बोले और आपके सामने बोल रहे, मुझे तो भाषा का समझने में भी दिक्कत हुआ, मैंने आपको बोला भी, लेकिन सारे नेता लोग तो विकास विकास बोल के गए, तो ये सुन लीजिए, सुनिए हम बताते हैं, जहाँ तक यहाँ का विधायक हो, सांसद हो, सारे आदमी को सोशल मीडिया के माध्यम से बताते भी हैं कि आप लोगों को किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है, क्या सरकार का जो भी योजना जो आता है लाभार्थी के लिए, लेकिन ये खुद ये लोग जो है 10,000 5,000 करके मुखिया कौन सा पार्टी से है? मुखिया कौन से पार्टी से है? मुखिया जी है ना, यहाँ छियै मुन्ना जी पैसा ले बीजेपी से। And in no time, the women went back to heaving praises for BJP. With education and other socio-economic indices putting the Simanchal far behind the rest of Bihar, it was clear how little it may take to win hearts and earn votes. While there are people who are absolutely ardent supporters of Prime Minister Modi, BJP and Pradeep Kumar Singh, but then there are other voices too who want their voices be heard as well. Leader they would choose with every election, but which election will make the difference in their lives? It's a question they are asking. With video journalist Ronnie Shatra along with Shuman Gupta, this is Tamal Shah for News the Truth, NTT.